ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜੋ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 9 to 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਫਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈਸੋਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆ AB ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ AC ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈਸੋਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ PQR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ QR ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ B ਦਾ ਇਹ 90 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਆ, ਐਕਿਊਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 90 ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 180, ਬਟ 180 ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ 180 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80.1 ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਰਾਈਟ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 60। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਫਾਲਸ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਫਾਲਸ। ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੂਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਰ 105 ਡਿਗਰੀ 70 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 5 ਡਿਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਈਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ 105 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 70 ਦਾ ਹੈ, 5 ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੋਣਾ। ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਐਂਗਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 2 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਪਤਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ 2 ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ 2 ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਆ 2 ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
नैक्सट अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स मोर दैन 60 डिग्री। एक ट्रायंगल के जोड़े सारे एंगल है 60 तो वड्डे होंगे नहीं, छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि सारे वड्डे होंगे, सो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नैक्सट उस तो बाद सैकेंड पार्ट, इन फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द एंगल मार्क्ड बाय द लैटर्स एक्स वाई जैड एंड डबल्यू गिवन रीजन फॉर द स्टैप्स ऑफ कैलकुलेशन। हम असीं फस्ट सम जिहड़ा डिस्कस करांगे किद्दां करना। हाँ जी स्टूडेंट, सैकेंड द फस्ट सम देखो, अपने एक डायग्राम दी हुई है ABC, उहदे उपर एक लाइन लगाई हुई है XY स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये आपां फाइंड की करना XYZ दी वैल्यूज़ फाइंड करनियाँ। सो किद्दां फाइंड करनी है, सब तो पहला देखो एक ट्रायंगल बन रही ना ABC, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन किहड़ी है, XY इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये देखो आह वाला जिहड़ा बनने वाला एंगल है 180 बन रहा है पूरा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जिहड़ा एंगल हुंदा है वो किन्ने दा हुंदा है, स्ट्रेट लाइन पूरी जिहड़ी है वो 180 के बराबर हुंदा। सो आपां की करना, ये तीनों चक लेनिया वैल्यूज़ 50 + x + 55, 50 + x + 55 इनू बराबर कर देना 180 की, ठीक है। सो दोनों वैल्यूज़ में आपस में जो प्लस किया 105 आ गया प्लस x आ गया इज इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 180, ये जो 105 में इधर लैके गए माइनस का हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है। सो अपने को x इत्थे फाइंड हो गया, अपने को दो वैल्यूज़ गिवन सीगियां, तीजी आप फाइंड कर ली है। सो ये 180 जिहड़ा ये बराबर करके क्लीयर। नैक्सट उस तो बाद जिहड़ा एंगल Z आ, Z जिहड़ा एंगल आ वो 55 एंगल दे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन सीधी है। 55 एंगल जिहड़ा Z आ वो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आ। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल की होंगे बराबर, सो Z की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। सो आप उस तो बाद इस तरह Y कढ़ लेनी है, ये वाली लाइन जी AB आ, ये 50 डिग्री और Y जिहड़ा वर्टिकली अपोजिट आ। सो Y की वैल्यू भी कितनी आ गई 50, क्लीयर। सो XYZ अपने को फाइंड होगा, X की वैल्यू 75, Z की वैल्यू 55, Y की वैल्यू 50, क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट सैकेंड सम दे विच भी आपां नूं ABC ट्रायंगल दित्ती हुई है, जिहदे विच अपने कोल दो एंगल दिते हुए हैं एक्सटर्नल। किद्दां फाइंड करने आ, सब तो पहला तो जिहड़ा ये एंगल आ, ये 50 डिग्री जिहड़ा आ इस वाली X दे की आ अल्टरनेट एंगल बन रहा है, 50 डिग्री और X की है अल्टरनेट एंगल बन रहा है। सो इत्थे मैं लिख दिता एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ठीक है। सो X की वैल्यू कितनी आ गई 50। इस तरह जिहड़ा एंगल B आ, B ते 60 डिग्री और Y की है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स आ, अल्टरनेट एंगल्स की होंगे बराबर होंगे। सो Y की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री, क्लीयर। हुण की करना है, अपने को X की वैल्यू भी आ गई, Y की भी आ गई, आप Z की फाइंड कर सकते हैं। आपां नूं पता है कि एक ट्रायंगल दे एंगल्स का जोड़ के बराबर होंदा है 180 दे हुंदा, हुणे आपां डिस्कस कीता सीगा पहला इंट्रोडक्शन च। सो X + Y + Z इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स 180 होंदा है। X की वैल्यू पता है, Y की पता है, Z की पता करनी है, इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड किया 110 आ गया। सो 110 जो उधरली साइड लैके जावांगे 180 चो माइनस करके 70 डिग्री आंसर आ गया। सो X Y Z अपने को फाइंड आउट हो गया, क्लीयर। नैक्सट उस तो बाद थर्ड सम दे विच भी अपने को एक ट्रायंगल दी हुई है ABC और एक DBE दी हुई है। ये सब तो पहला तो ये वाला एंगल जिहड़ा B दा है, B दे विच Y जिहड़ा आ 110 ते Y जिहड़ा ये की अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। इत्थे मैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल लिखा, शॉर्ट लिखा, तुसीं पूरा लिख लेना। सो Y की वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गई, क्लीयर। उस तो बाद जिहड़ा Z एंगल आ ये पूरी लाइन देखो DC लाइन पूरी देखो। Z एंगल जिहड़ा 40 डिग्री दे की आ वर्टिकली अपोजिट आ, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट आ, ठीक है। सो ये की कह सकते हैं आप, Z की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, अपने को Y भी फाइंड हो गया, Z भी फाइंड हो गया। हुण देखो अपने को ये वाली ट्रायंगल देखो ABC दे विच अपने को एक एंगल आपां नूं पता 110 है, Z की वैल्यू आपां नूं पता 40 डिग्री है, ठीक है। W आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल आ, ट्रायंगल का जिहड़ा एंगल्स का जोड़ के तो होंदा 180 दे। सो मैं की कीता W + Z + 110 इज इक्वल टू 180 करता, ठीक है। सो Z की वैल्यू कितनी आ गई, इत्थे Z की वैल्यू सॉल्व करके 30 डिग्री आ गई। इन्हें दोनों प्लस करके 150 इधरली साइड लैगी माइनस का हो गया, W की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, अपने को W फाइंड हो गया। हुण आपां की करना BDE जिहड़ी आ ट्रायंगल ले लैनी। इहदे विच भी आपां नूं Y की वैल्यू पता है 110 आ, ये वाला एंगल पता 40 डिग्री का, X का एंगल फाइंड करना। सो आपां की करना तीनों एंगल नूं प्लस करके 180 के बराबर कर देना। 40 Y की वैल्यू पता है, दोनों नूं प्लस किया 150 आ गया, 150 नूं जो उधर लैके गए माइनस हो गया है, X की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई।
सो एक्स वाई जैड डबल्यू आप सिंपलीफाई कर लिया। ये तीनों सम दे विच जेकर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई दैन मैंने कमेंट करके जरूर दस देना है, ठीक है। बाकी मैं थानू सारा समझा दिता है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड सम देखो, द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 78 डिग्री एंड 62 डिग्री। कहते दो एंगल्स जड़ियाँ एंगल्स ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ पता करना तीजा एंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ एक ट्रायंगल ਦੇ दो एंगल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, एक तीसरा पता करना है। देखो किद्दां फाइंड करना ਆਪਾਂ थर्ड सम ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां ट्रायंगल्स टू एंगल्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 78 और 62। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ कि वन एंगल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ पता करना है वो एक्स आ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ एंगल्स ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਦੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ एंगल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लस करके 180 ਦੇ इक्वल कर देना। 62 ਨੂੰ 78 ਨਾਲ प्लस किया 140 आ गया। जो 140 ਨੂੰ इधरली साइड लैग गए माइनस का हो गया। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। आप जो तीसरा एंगल आ वो फाइंड कर लिया 40 डिग्री। क्लीयर। इस तरह फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम के एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशो 1:3:5 आ। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल्स। कहते अपने कोल ट्रायंगल ਦੀਆਂ रेशोज़ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ पता करने उन्होंने ਦੇ एक्चुअल एंगल ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। देखो ये सम किद्दां करना, एंगल ऑफ ट्रायंगल इन रेशो दिता 1:3:5। आप की कर लिया, लैट कर लिया कि फस्ट एंगल 1x है, सैकेंड एंगल 3x है, थर्ड एंगल 5x है। मतलब उन्होंने नाल की किया आप x ला दिता 1x 3x 5x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि तीनों एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ 180 डिग्री के बराबर ਹੁੰਦਾ। मैं तीनों ਨੂੰ प्लस करके 180 के बराबर करता। उस तो बाद नैक्सट देखो, तिन्नों जो मैं प्लस किया 9x आ गया इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इतों 20 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। आप फस्ट के किया फस्ट एंगल से अपना 1x, सैकेंड एक्स 3x, थर्ड एंगल 5x सी। जिथे एक्स है उत्थे आप की लिख देना 20। 1 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई की 20, 3 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई की 60, 5 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई किया 100। सो तीनों एंगल की है फाइंड हो गए। इन्हां दे उपर डिग्री डिग्री ला लेना तुसी, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। नैक्सट फिफ्थ सम। फिफ्थ सम दे विच वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स इज़ 40 डिग्री। फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। आपां नूं पता है कि एक्यूट एंगल किहड़ा हुंदा जिहड़ा 90 डिग्री तो की हुंदा है, घट हुंदा है, छोटा हुंदा है, ठीक है। सो इहदे विच आपां किद्दां करना है, आपां नूं एक एंगल दिता होया, आपां दूजा पता करना। देखो वन ऑफ द एक्यूट एंगल 40 डिग्री दिता होया, अदर एंगल आप लैट कर लिया कि एक्स है। आपां नूं पता है कि दो एंगल्स जिहड़े आ वो प्लस करांगे तां ही 90 डिग्री आऊगा, क्योंकि सम ऑफ एक्यूट एंगल की हुंदा 90 डिग्री हुंदा है, ठीक है। दोनों नूं एंगलों नूं प्लस करके 90 डिग्री के बराबर रखता। सो एक्स इधर एज इट इज़ रह गया, 42 जो उधर लैग गए माइनस का हो गया। 90 चो 42 माइनस किए 48 की आ गया अपने को अदर एंगल आ गया, अदर एक्यूट एंगल, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद सिक्स सम द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये भी अपन एक एक्यूट एंगल दी हुई है जो कि राइट है, ठीक है। वो रेशो दी 2:3। फाइंड करना है उन्होंने एंगल्स। सो जिद्दां आपां फोर्थ सम किया सी उहदे तरह ही है, बट ये एक्यूट एंगल है। रेशो की दी है 2:3। फस्ट एंगल कर लिया आप 2x के बराबर है, सैकेंड एंगल 3x के बराबर है। दोनों एंगल्स नूं प्लस करके 90 के बराबर कर देना, क्योंकि सम ऑफ एक्यूट एंगल 90 के बराबर होंदा। 5 आ गया इत्थे, 5 इधर जाके की होना डिवाइड। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। फस्ट एंगल कितना आ गया अपने को 2x सी, जिथे x है उत्थे 18 लिख देना। 2 × 18 कितना आ गया 36। सैकेंड एंगल कितना सी 3x 3 नूं 18 नाल मल्टीप्लाई करती 54 आ गया। नैक्सट उस तो बाद 7 सम देखो, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ द आइसोस्केलन ट्रायंगल इज 72 दिता है। पता करना वर्टिकल एंगल्स। पहला तो आपको पता है कि आइसोस्केलन ट्रायंगल के दो साइडां बराबर होंदियां, तीजी साइड बराबर नहीं होंदी। आपको एक साइड दी हुई है, इट मीनस जी एक साइड 72 आ, उतों जी दूजी साइड होगी वो भी 72 होगी। सो मैं की किया दोनों साइडां 70 72 ले लिया, तो जी तीजी साइड से उन्होंने एक्स लैट कर लिया। तीनों साइडों को प्लस करके 180 के बराबर कर देना। जो दोनों को प्लस किया 144 आ गया। 144 उधर ही साइड लै गया, 180 चो माइनस करके एक्स की वैल्यू जोड़ा तीसरा एंगल है वो पता हो गया आइसोस्केलन ट्रायंगल का, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, नैक्सट उस तो बाद 9th सम करना है। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 130 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। वट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ऑफ दीज एंगल्स। देखो ये सम किद्दां करना, अपने को एक एंगल दिता होया है ट्रायंगल का 130 डिग्री, तो उन्हें दो जोड़े बाकी बचते एंगल आ उन्होंने कहा कि वो इक्वल आ बराबर है। जेकर मैं लैट कर लिया कि अदर एंगल एक्स आ, दैन जोड़े बाकी के दो एंगल वो एक्स होंगे, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम ही करना है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि तीनों कोणों का जोड़ा जोड़ है, मतलब तीनों एंगल्स का जोड़ा सम है वो किहदे बराबर होंदा 180 डिग्री के बराबर होंदा। सो x + 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। एक्स नूं एक्स नाल प्लस किया 2x आ गया, प्लस 130 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री।
130 ਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ माइनस का हो गया, सो इन्हों माइनस करके 50 डिग्री आ गया। 2 जोड़ा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25, दोनों एक्सा कितनी आ गई 25 डिग्री। नैक्सट उस तो बाद 11 सम, द गिवन फिगर हैज़ मेड बाय यूजिंग 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स की फिगर बनी हुई है स्टार की। ये आप आ चीज़ को प्रूफ करना है। देखो किस तरह करना है। ये आप इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के पता आपां कि ये वाली ट्रायंगल के तीनों जोड़े एंगल आ उन्हों का सम कि बराबर होगा 180 डिग्री। तो जी आ वाली ट्रायंगल है DEF, ये भी तिना कोणों का जोड़ा जोड़ आ 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब तीनों एंगल्स का जोड़ा सम आ 180 डिग्री के बराबर होगा। सो मैं किया दोनों जोड़ियाँ इक्वेशनस आ उन्होंने ऐड करता, मतलब इनू इन्ना ऐड कर दिता तो इनू इन्ना ऐड करता। सो जी चीज़ आप प्रूफ करनी सो हैंस प्रूफ होगी, इत्थे तुसीं हैंस प्रूफ लिख लेना। सो स्टूडेंट्स यही सम आप इस एक्सरसाइज के करने हैं, जोड़े सम मैं नहीं करवाए वो तुसीं कट देने हैं, तो इनू चंगी तरह तुसीं अपनी नोट कॉपी पर उतार लेना है, ठीक है। एंड वीडियो नू लाइक तो सबसक्राइब जरूर कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।